And students, today's the topic is the characteristics of high level language. First of all, tell me about what do you know about high level language? Yes, Sufyan, what Yes, do you miss. know about high level language? Hello. मिस ये मिस प्रोग्रामिंग के लिए यानी लैंग्वेज है जो सिंपल इजियर एंड लेस जो यानी इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. Okay. In other words, हाई high level language are English oriented language, and basically high level language are commonly used for writing computer programs. This is close to the human language. That means programmer easily understand this language, high level language, because we code our instruction in English language, not in machine codes, means binary form, in discrete form, 0 and 1 form. If I say you code the program in the form of zeros and one, too difficult, too difficult. So that's why high level languages are introduced. High level languages based on the syntax. Syntax is the grammatical rules and regulation rules of the programming language. किसी भी programming language के उसमें rules होते हैं. उन rules को and these rules are follow the programmer. Programmer उसको follow करता है और उसमें program में code करता है, उसमें coding करता है. ठीक है? Now I discuss you about the characteristics of high level language. High level language are yes, high level language have the following characteristics. The language was developed to make computer programming simple, easier and less prone errors. ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस की वजह से सिंपल हो गया, आपके लिए इजी हो गया. अगर आपको मैंने अभी स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आपको मैं कोड कहती हूँ कि राइट करें इन बाइनरी फॉर्म, दैट्स टू डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. और एक्सपर्ट प्रोग्रामर भी, क्योंकि आपने अगर एक लेटर ऐड एंड लेटर है आपका ए लेटर, अगर आपने एंटर करना तो उसके बिहाइंड 8 और 7 बिट का कोड होगा. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल. और इसके अलावा आपका ये लेस आप कह सकते हैं एरर्स के चांसेस भी इसमें कम होते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट मशीन डिपेंडेंट. आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है. मशीन डिपेंडेंट इन सेंस, इस सेंस में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इसमें आपका ये वेरी कर रहा होता है ना कि आपकी जो आपका मशीन है वो आप अगर आप उसमें कोड करते हैं तो वो हर आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें जो आपके सर्किट्स के डिजाइन है वो हर एक में चेंज होता है. उसमें जो हमारे पास एंड और नॉट गेट, हमारे जो गेट्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. दैट्स व्हाई वो फिर कोडिंग स्कीम उसके लिए डिफरेंट होगी. हु आर डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग, टेल मी हु आर डूइंग दिस. Program written in high level language okay, program written in high level language must be translated into machine language by a compiler or an interpreter before execution by the computer. Listen, our high level language program our computer system not directly understand, because our computer system understand machine language. First, this
our high level language program convert into machine codes with the help of compiler or an interpreter. Do you know compiler and interpreter is a system software? It's a software or the language translator that translate high level language program into machine code. And our computer gives the result in binary form, but after that compiler or interpreter converts this result into human readable form in high level in English codes. English में आपको वो convert होके आपके सामने show होता है. That's why we easily understand. The process of finding and removing errors in program is easier in high level language compared to low level language. First of all, the process of finding and removing errors in programs means debugging. Because of the high level debugging process is very easy. Debugging means finding and removing errors in the program. Means आपने एक प्रोग्राम को कोड कर लिया, कोड करके उसको जब आप टेस्ट करते हो, चेक करते हो whether the program is right or wrong, आप उसको पहले टेस्ट करने उसको डिबगिंग कहते हैं. पहले आप टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद अगर आपको कोई एरर फाइंड हुए हैं, कोई एरर्स हैं, तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो. तो ये आपके पास किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? हाई लेवल लैंग्वेज की वजह से. बट लो लेवल लैंग्वेज में ये काफी मतलब डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें आपके पास कंप्लीटली सारे कोड्स को चेक करना जो आपके बाइनरी कोड्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट. ओके, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आर हाईली स्ट्रक्चर्ड. आपसे मैंने कल स्ट्रक्चर लैंग्वेज के बारे में बात की थी कि हमारे पास जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती हैं जिसमें हम लोग सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप का करते हैं. ये इसमें हमारे पास 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस में, और सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप. तो ये हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं प्रोग्राम्स होते हैं वो हाईली स्ट्रक्चर बेस होते हैं. हमारे पास स्ट्रक्चर बेस है ये. ओके, अब आपको जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है ये हमारे पास 4th जनरेशन लैंग्वेज है. A high level language यानी 4GL that requires fewer instructions to accomplish a task than a 3rd generation language. जैसे 3rd जनरेशन में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज थी, उससे आपका क्या होता है कि आपकी जो few instructions आप करते हो लेकिन उसको आप अपने इंग्लिश कोड में एंटर करते हो और उसके बाद प्रोग्रामर के लिए ये बहुत इजी हो जाता है. ये जो टास्क है ये 3rd जनरेशन लैंग्वेज में जो हम लोग यूज करते थे उससे क्वाइट इजी, बहुत ज्यादा इजी है. यूज्ड विद डेटाबेसेस, ये हमारे पास जो 4th जनरेशन लैंग्वेज डेटाबेसेस के लिए बहुत ज्यादा के लिए यूज होती हैं. क्यूरी लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, रिपोर्ट जनरेटर्स होते हैं, फॉर्म डिजाइनर्स होते हैं और एप्लीकेशन जनरेटर्स होते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को अगर आपने फॉर्म्स को डिजाइन करना है उसके लिए, रिपोर्ट के लिए, और इसके अलावा क्यूरी लैंग्वेजेस होती हैं. क्यूरी लैंग्वेज ऐसे हम लोग कोई डेटाबेस बनाते हैं, उस डेटाबेस पे हमने कोई क्यूरी अप्लाई करनी होती है. मान आपने कोई डाटा इंसर्ट करना है, कोई डाटा आपने रिमूव करना है, या आपने कुछ उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट क्यूरीज होती हैं. हमारे पास क्यूरी लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू ये हमारे पास पॉसिबल हुआ. अब हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं. सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी अबाउट द फोर्ट्रान. फोर्ट्रान आपके पास ये डेवलप की थी IBM कंपनी ने मिड ऑफ द 1950s में, और ये बेसिकली जो हमारे पास डिजाइन हुई थी फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था. और मैथमेटिकल एप्लीकेशन बाय द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, और ये स्टैंड्स फॉर होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन. तो बोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, डेवलप कब हुई थी 1959 में, और डिजाइन टू बी कॉमन to many different computers and typically used for business application. ये बेटा स्टार्ट में हमारे पास डेवलप हुई थी, ये बात है 1960s की, मतलब ये देखें 1959 में ये डेवलप हुई थी कोबोल हमारे पास. और ये बेसिकली डेवलप किस लिए की थी? बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था.
अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है बेसिक बिगनर आउट पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन को डेवलप इन डेट नॉट कॉलेज इन मिड 1960s में इसको डेवलप किया गया था. Developed as a simple language for students to write program with which they could interact through terminal. अच्छा जी, C language developed by the Bell Laboratories in the early 1970s. 70s में ये develop हुई, तो provides control and efficiency of assembly language while having third generation features. Often used for system programs. Unix is written in C. Unix, students, Unix is a operating system. अब आपसे यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे जरा गौर करें. ऑफन यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्राम्स मींस आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए सी लैंग्वेज को यूज किया. जैसे आपकी यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया है. आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम विंडोज भी यूज कर रहे हैं, ये भी हमारा लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया. आप कोई भी प्रोग्राम, कोई आप गेमिंग का ले लें या आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ले लें, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है वो कोई आपकी किसी ना किसी लैंग्वेज में डेवलप हुआ है. ठीक है, डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो इंट्रोड्यूस हुई है और डिफरेंट पर्पस के लिए. अच्छा जी, अब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++. इट इज द सी लैंग्वेज विद एडिशनल फीचर्स. ये हमारे पास जैसे सी लैंग्वेज के एडिशनल फीचर्स हैं. मैं अब आपको इससे रेलेवेंट थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ. आपके 10th क्लास के सिलेबस में जो आपने मतलब आपकी लैंग्वेज है वो हमारे पास सी लैंग्वेज है जिसमें हमने प्रोग्राम्स बनाने हैं. ठीक है, और C++ जो है ये हमारे पास आपके पास ICS में आप सेकेंड ईयर में इसमें करोगे. और ये है कि जो आपके पास सी लैंग्वेज है उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स को एड ऑन किया गया. तो हमारे पास क्या है, C++ है. वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसको यूज होती है या आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करने के लिए इसको यूज किया जाता है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैन बी डेवलप इजीली विद विजुअल प्रोग्रामिंग टूल्स. और ये इसकी वजह से बहुत इजी हो गया कि आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपके पास GUI यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो बहुत इजी हो गया इसमें डेवलप करना विद विजुअल प्रोग्रामिंग टूल्स, डिफरेंट विजुअली प्रोग्रामिंग टूल्स को यूज करते हुए. ओके, जावा भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सिमिलर टू C++ that eliminates lot of C++ problematic features. आपका जो ये भी सिमिलर ही है, उससे मिलते जुलते C++ से, बट इसकी जो जावा ने प्रॉब्लमेटिक जो फीचर्स थे C++ के उसको एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया. तो इजी हो गया आपके पास जावा में वर्क करना. मतलब जावा उसकी मतलब रिप्लेसमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि उसके जो प्रॉब्लमेटिक कुछ फीचर्स थे उसको एलिमिनेट करके आपका ये जावा लैंग्वेज को डेवलप किया गया. अलाउ अ वेब पेज डेवलपर्स टू क्रिएट प्रोग्राम्स फॉर एप्लीकेशंस कॉल्ड एप्लेट्स. जावा एप्लेट्स होते हैं, ये ज्यादातर हम लोग जो अपने वेबसाइट्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, जो वेब पेज डेवलप करते हैं उनके लिए. ठीक है, और दैट कैन बी यूज्ड थ्रू अ ब्राउजर. ब्राउजर आपको पता ही होगा, ब्राउजर किसे जिसके थ्रू हम लोग कोई भी अपना मतलब हम लोग कुछ भी सर्च करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं. तो वेब ब्राउजिंग तो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा डेवलपर इज दैट इट बी मशीन प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट. और इसका जो ऑब्जेक्टिव है जो कि जावा डेवलपर्स ने जावा लैंग्वेज डेवलप की, उनका है कि दैट इट बी मशीन प्लेटफॉर्म, यानी कि ये मशीन आपके प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट ये होनी चाहिए. और इसके अलावा हमारे पास स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि है हमारी HTML. मैं आपको करवाऊंगी आपका
चैप्टर नंबर 7 है। इसमें हमारे ये मैंने आपको वैसे इंफॉर्मेशन के लिए किया, लेकिन अभी आपके कोर्स आउटलाइन में नहीं है, बट मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए इसको ऐड ऑन किया है। HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज ऑन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। इसको यूज किसके लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब मींस आपने कोई वेब पेज अपना डेवलप करना है तो उसके लिए इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हम लोग टैग यूज करते हैं। मैं आपको बेसिक जो लेआउट होगा आपका वेब, अगर आप कोई वेब पेज डेवलप करना है उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने टैग्स का यूज करना है। इसमें आपने टेबल्स को कैसे फ्रेमिंग कैसे करनी है, टेक्स्ट को कैसे आपने करना है, और इमेजेस कैसे आप करेंगे, और इसमें आपने लिंक्स कैसे क्रिएट करना है, ये मैं आपको आपके जो भाई है उसके मुताबिक आपको करवाऊंगी HTML में वर्क ना। ठीक है। वेब पेज डेवलपर पुट्स ब्रीफ कोड्स कॉल्ड टैग्स। इसमें हमारे पास टैग्स यूज होते हैं, एक हमारा स्टार्टिंग और एक हमारा एंडिंग टैग होता है, यूज होता है इन द पेज टू इंडिकेट हाउ द पेज शुड बी फॉर्मेटेड, और उसको आपने पेज को किस तरह फॉर्मेट होगा आपका। अच्छा जी, अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने आपसे जो बात डिस्कस करनी है, आप मुझे ये बताएं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए इसके हाई लेवल लैंग्वेज के? हेलो हेलो, यस मिस, यस जी मिस, आ मिस। रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नहीं मिस। अच्छा, अब आप लोगों ने एक ऐसे करना है कि अभी आप रीड करेंगे पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज के टॉपिक को। इनमें आपने मेन पॉइंट्स को भी हाईलाइट करना है। मैं अभी आपका क्यूरी सेशन होगा, उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज से रेलिवेंट ना। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग डिवाइड कर लें, मीन्स एक C एंड C++ का कर ले, एक विजुअल बेसिक है C# का कर ले, और जावा का आप लोग कर ले। ठीक है,